Hi everybody, welcome to this session of amines. Let's start with the first question. The major product A and B in the following set of reactions are. So guys, ये जो left hand वाला reaction है, इसमें reagent is LiAlH4, which is a strong reducing agent. So this reagent will reduce the CN group to CH2NH2. On the other hand, right hand side में हम hydrolysis कर रहे हैं. To be specific, we are doing acidic hydrolysis. गैस ऐसे केस में जो आपका CN ग्रुप होता है इट गेट्स कन्वर्टेड टू COOH ग्रुप विच मीन्स इट गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. And now guys, if you have an OH group just next to COOH group, then in that case water is released and a double bond is formed. So let's observe this in the solution. Yes students, so जैसा कि आप यहाँ observe कर सकते हो, we are using LiAlH4 as the reducing agent. Guys, in this case, CN group will get converted to 1 degree amine, which means CN group will get converted to CH2NH2. Guys, LiLH4 में H- ions होते हैं, which are responsible for reduction. इसमें आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी होती है, that the number of carbon atoms in the entire compound will remain same. With this, we have completed the first part of this question. Now let's look at the solution of the second part. Yes, students. So if we observe the second part of this question, we are doing acidic hydrolysis of this compound. Guys, जब भी आप acidic hydrolysis करते हो तो आपका जो CN ग्रुप है it gets converted to carboxylic acid group. तो आप यहाँ देख सकते हो that CN group has been converted to COOH group. And now guys, whenever you have OH group just next to COOH group, then repulsion takes place between the lone pair of electrons of oxygen atoms and therefore water is released in the next step. तो आप देख सकते हो कि अगले स्टेप में एक डबल बॉन्ड तैयार हो चुका है and guys this double bond will be in resonance with COOH group. So this is your final answer and the learning of this question is that whenever you use a strong reducing agent, CN group will get converted to CH2NH2 and people whenever you are doing acidic hydrolysis, CN group will get converted to carboxylic acid group, which means it will get converted to COOH group. Now let's move ahead to the second question. Yes students, so in this second question we have an acid chloride compound which is going to be treated with alcoholic NH3 followed by NaOH-Br2 followed by NaNO2HCl and hydrolysis. So guys, let me explain this to you step by step. Guys, पहले स्टेप में when you treat this compound with alcoholic NH3 तो आपका जो क्लोरीन एटम है it will be replaced by NH2. After this, when you treat this compound with NaOH-Br2 तो हॉफमन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन होता है in which C double bond O group is lost as CO3 2-. After that, when you treat the resulting primary amine with NaNO2HCl तो guys अल्कोहल फॉर्म होता है after hydrolysis. So this is the main crux of this question. Let's observe the solution in the next slide. Yes students, तो guys आप यहाँ देख सकते हो that the original compound is an acid chloride and we are going to treat this with alcoholic NH3. Guys, अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है it has lone pair of electrons and therefore it goes and attacks carbonyl carbon. People, after this attack, chlorine is lost because carbon-chlorine bond is weak and this results in the replacement of chlorine atom by NH2 group. Guys, the compound that has been formed here is known as an amide. Guys, after the formation of amide, when we treat this with NaOH and Br2, Hofmann bromomide degradation will take place. Guys, in Hofmann bromomide degradation, this C double bond O group is lost and this results in the formation of primary amine. Let's observe the structure of this primary amine in the next slide. Yes students, so you can observe that this compound which has been formed here is a primary amine which has a CH2NH2 group. Guys, यहाँ पे C double bond O group नहीं है because it is lost in Hofmann bromomide degradation as CO3 2-. Now people, after the formation of this primary amine, we are going to treat it with NaNO2 and HCl followed by hydrolysis. Guys, this results in the conversion of this primary amine into alcohol. Guys, this is because whenever you treat the NH2 group with NaNO2 and HCl, it gets converted into diazonium salt. Now guys, since water is a good nucleophile,
it comes and replaces this diazonium part with this OH group. In this case, nitrogen gas is released and we all know that it is quite stable. So guys, हम ऐसा बोल सकते हैं that whenever you treat primary amine with NaNO2HCl followed by hydrolysis, तो it gets converted into alcohol. So guys, आप यहाँ पे final answer देख सकते हो. With this, we have completed the second question. Now let's move ahead to the next slide. Yes, students. The third question of this chapter is, which of the following is not a correct statement for primary aliphatic amines? Guys, the first statement is, the intermolecular association in primary amines is less than the intermolecular association in secondary amines. Guys, ये जो statement A है, यही wrong statement है. Guys, we know that in primary amines, we have the structure of CH2NH2. In this case, two hydrogen atoms are attached to nitrogen, and both of these will be involved in intermolecular hydrogen bonding. On the other hand, in secondary amines, we have a CHNH group in which there is only one hydrogen atom attached to nitrogen, and therefore in this case only one hydrogen atom will be involved in hydrogen bonding. तो हम ऐसा बोल सकते हैं that in primary amines there will be more hydrogen bonding because more number of hydrogen atoms are directly attached to nitrogen. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. With this, we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes, students. In the fourth question of this chapter, we have a compound which has been treated with potassium salt of phthalimide followed by OH minus ions in water. Guys, this is a question of Gabriel phthalimide synthesis in which primary amine or a 1 degree amine is formed. तो इसका मतलब ये जो ओरिजिनल कंपाउंड है हमें बस उसका 1 डिग्री यानी प्राइमरी अमाइन बनाना है. So guys, your final answer should be benzene CH2NH2. Let's observe this in the solution in the next slide. Yes, students. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, in the first step, the N- part of phthalimide comes and attacks the CH2 group where bromine minus will be the leaving group. So guys, this is an example of nucleophilic substitution और यहाँ पे मैकेनिज्म भी मेंशन किया है as SN2. So guys, आप ध्यान में रख सकते हो that Gabriel phthalimide synthesis is an example of nucleophilic substitution in which the mechanism is SN2. So guys, after the first step, this benzene CH2 part gets attached to nitrogen. After this, when we treat this molecule with OH minus ions in water, तो ये जो OH minus ions हैं, they go and attack the carbonyl carbon in phthalimide part. This results in the formation of phthalic acid and primary amine, जिसका स्ट्रक्चर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो as benzene CH2NH2. So guys, इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो है बेंजाइल अमाइन and this is a primary or a 1 degree amine. In conclusion, हम ऐसा बोल सकते हैं that in Gabriel phthalimide synthesis, nucleophilic substitution takes place, the mechanism is SN2 and it always results in the formation of primary or 1 degree amine. With this, we have completed this fourth question. Now let's move ahead to the next slide. Yes, students. The fifth question of this chapter is, which of the following products does not react with Hinsberg's reagent to form sulfonamide? Guys, यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास प्राइमरी अमाइन होता है तो वो हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके सल्फोनामाइड बनाता है. तो हमें ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में प्राइमरी अमाइन नहीं बन रहा है so that it does not react with Hinsberg's reagent. तो गैस यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर होगा. गैस इन ऑप्शन बी वी हैव बेंजोनाइट्राइल एंड दिस हैज बीन ट्रीटेड विद SnCl2 and HCl. तो गैस ऐसे केस में जो CN ग्रुप है इट गेट्स पार्शियली रिड्यूस्ड टू CH डबल बॉन्ड NH. गैस इस केस में प्राइमरी अमाइन नहीं बनता है एंड देयरफॉर ये ऑप्शन बी का जो प्रोडक्ट होगा it does not react with Hinsberg's reagent. Let's observe this in the solution in the next slide. Yes, students. तो जैसे कि आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो, our original compound, which is also known as cyanobenzene, when this is treated with SnCl2 and HCl, the CN group gets converted to CH double bond NH, which is known as imino group. और guys देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है, imino group does not react with Hinsberg's reagent. गाइस अगर हमारे पास प्राइमरी अमाइन है यानी कि अगर हमारे पास CH2NH2 ग्रुप है तो ऐसा ग्रुप रिएक्ट करता है विथ हिंसबर्ग्स रिएजेंट टू फॉर्म सल्फोनामाइड. लेकिन गाइस CH डबल बॉन्ड NH यानी कि जो इमिनो ग्रुप है इट डज नॉट रिएक्ट.
With this, we have completed the fifth question. Now let's move ahead to the next slide. Yes, people. The sixth question of this chapter is, compound A is converted to B on reaction with chloroform and KOH. The compound B is toxic and can be decomposed by C. A, B and C respectively are. Guys, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कार्बाइलमाइन टेस्ट. गाइस, कार्बाइलमाइन टेस्ट इज ओनली शोन बाय प्राइमरी अमाइंस. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कंपाउंड ए है वो प्राइमरी अमाइन होगा. एंड नाउ गाइस, व्हेनेवर प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ RNC, जिसको हम आइसोनाइट्राइल बोलते हैं. गाइस, दिस आइसोनाइट्राइल कंपाउंड इज एक्चुअली टॉक्सिक इन नेचर. एंड गाइस, इस आइसोनाइट्राइल कंपाउंड का डिकम्पोजिशन आप कर सकते हो बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड HCl. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. लेट्स ऑब्जर्व द एंटायर सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. ये स्टूडेंट्स, तो आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हो दैट अगर आपके पास प्राइमरी अमाइन है विच इज अ 1 डिग्री अमाइन, और अगर आप इसको ट्रीट करते हो विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH, तो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ RNC विच इज नोन एज आइसोनाइट्राइल. गाइस, इस टेस्ट को हम बोलते हैं कार्बाइलमाइन टेस्ट. गाइस, ये कार्बाइलमाइन टेस्ट जो है वो सिर्फ 1 डिग्री अमाइन दिखाते हैं. नाउ गाइस, दिस कंपाउंड RNC इज एक्चुअली टॉक्सिक इन नेचर. And now guys, if you want to decompose this compound RNC, you will have to add concentrated HCl. People, this results in the formation of RNH2, which is again an amine, and HCOOH, which is known as formic acid. So guys, यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ 1 डिग्री अमाइन कार्बाइलमाइन टेस्ट दिखाता है, and this results in the formation of RNC, which can be decomposed by HCl to form RNH2 and formic acid. So with this, we have completed the sixth question of today. Now let's move ahead to the next slide. Yes, students. The seventh question of today is, in the reaction of hypobromite with amide, the carbonyl carbon is lost as. Guys, this is a reaction of Hofmann-bromamide synthesis. हमें पता है that in Hofmann-bromamide synthesis, the reagent is NaOH and Br2, and this results in the formation of hypobromite. एंड गाइस, ऐसे केस में जो आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, यानी कि जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है, इट इज लॉस्ट एज CO3 2-. गाइस, इसका जो डिटेल केमिकल रिएक्शन है उसको आप यहां नीचे ऑब्जर्व कर सकते हो. गाइस, व्हेनेवर यू हैव अमाइड RC डबल बॉन्ड O NH2, और अगर आप इसको ट्रीट करते हो विद ब्रोमीन एंड NaOH, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन विच हैज 1 कार्बन एटम लेस, एंड अलॉन्ग विद दिस Na2CO3 and NaBr are the side products. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ओरिजिनल अमाइड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इट हैज बीन लॉस्ट हियर एज CO3 2- एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड इज Na2CO3 एंड प्राइमरी अमाइन विच इज RNH2. इसी के साथ गाइस ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, द 8th क्वेश्चन ऑफ टुडे इज, an organic compound A on treatment with benzene sulfonyl chloride gives compound B. B is soluble in dilute NaOH solution. Compound A is. So guys, this is an example of Hinsberg's test. Guys, Hinsberg's reagent is benzene sulfonyl chloride, and guys, जो primary amines होते हैं वो इनके साथ react करके ऐसा compound बनाते हैं which is soluble in dilute NaOH solution. तो इसका मतलब गाइस, ये जो 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें से हमें प्राइमरी अमाइन आइडेंटिफाई करना है. गाइस, काफ़ी आसान है ये. द करेक्ट आंसर हैज़ टू बी ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें आपको NH2 ग्रुप दिखाई दे रहा होगा. गाइस, व्हेनेवर यू हैव NH2 ग्रुप तो वो प्राइमरी अमाइन होता है. मैं आपको फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ. गाइस, हिंसबर्ग्स रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. व्हेनेवर प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दे विल फॉर्म अ कंपाउंड विच इज सोल्यूबल इन डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन. तो हमें प्राइमरी अमाइन आइडेंटिफाई करना था एंड द करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन डी. गाइस, अगर सेकेंडरी अमाइन को आप लेते हो और आप उसको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो उसमें जो कंपाउंड बनता है इट इज एक्चुअली इनसोल्यूबल इन अल्कली. एंड गाइस, जो टर्शरी अमाइंस होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. So this is a way of in a way differentiating between 1 degree, 2 degree and 3 degree amine, और इसी टेस्ट को हम बोलते हैं हिंसबर्ग्स टेस्ट. Now let's move ahead to the next question.
Yes, students. The ninth question of this chapter is which of the following is least basic? तो गैस हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं. हमें ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लीस्ट अवेलेबल हैं फॉर डोनेशन. गैस जिस मॉलिक्यूल के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं फॉर डोनेशन वो मॉलिक्यूल्स लेस बेसिक होते हैं. गैस बेसिसिटी इज डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जो मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट नहीं कर पाता है वो लेस बेसिक होता है. तो गैस हम जब इन चारों ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि जो ऑप्शन सी है उसमें जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप ऑन बोथ साइड्स. तो गैस यहाँ आप ऑप्शन सी में देख सकते हो कि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों तरफ जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ रेजोनेंस कर रहा है. इस वजह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल नहीं है फॉर डोनेशन एंड देयरफॉर ये ऑप्शन लीस्ट बेसिक होगा. सो इन समरी गाइस, एनी मॉलिक्यूल विच कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर बेसिक एंड एनी मॉलिक्यूल whose lone pair of electrons are occupied in resonance and hence not available for donation will be less basic. With this we have completed this question. Now let's move ahead to the next slide. Yes people, the 10th question of this chapter is a monolysis of alkyl halide followed by treatment with NaOH solution can be used to prepare primary, secondary and tertiary amines. The purpose of NaOH in the reaction is. गाइस ये जो अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड है इसमें हम अमोनिया ऐड करते हैं इनटू अल्काइल हैलाइड विच इज RX. सो गाइस दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस एंड ऑल्सो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. गाइस यहाँ पे हर एक स्टेप में HX रिलीज होता है एज साइड प्रोडक्ट. गाइस दिस HX इज एक्चुअली आइदर HCl, HBr, HI विच आर एक्चुअली एसिड्स. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग NaOH ऐड करते हैं so that this acidic impurity or this acidic side product of HX is actually neutralized. So this is the main purpose of adding NaOH in this reaction. Let's observe this in the solution in the next slide. Yes students, तो आप यहाँ observe कर सकते हो the chain of reactions in ammonolysis. Guys यहाँ पे starting compound होता है alkyl halide which is RX. We are going to treat this RX with ammonia and this will result in the formation of primary amine which is RNH2. इस केस में guys जो side product होता है it is HX. Now guys this primary amine RNH2 reacts further with another alkyl halide to form R2NH which is secondary amine. अब guys इस केस में भी जो side product बनता है it is again HX. Now guys this secondary amine R2NH reacts further with another alkyl halide RX to form tertiary amine R3N and finally this tertiary amine R3N will again react with RX to form R4N plus X minus which is known as quaternary ammonium salt. तो guys हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे starting compound था alkyl halide and when this reacts with ammonia it results in the formation of primary amine, secondary amine, tertiary amine and also quaternary ammonium salt. अब guys यहाँ पे आप देख सकते हो that in every step the side product is HX which is an acid. अब guys इस acid को बाहर निकालने के लिए हम NaOH ऐड करते हैं so that it gets neutralized. So this is the concept of this question. Now let's move ahead to the next slide. Yes people, the 11th question of this chapter is an amine on reaction with benzene sulfonyl chloride produces a compound insoluble in alkaline solution. The amine can be prepared by ammonolysis of ethyl chloride. The correct structure of this amine is. So guys इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसा अमाइन ढूंढना है which can be produced by ammonolysis of ethyl chloride and also ये अमाइन secondary अमाइन होना चाहिए. Guys the reason that I am saying that it should be a secondary amine is because it reacts with Hinsberg's reagent to form a compound which is insoluble in alkaline medium. Guys अगर ये compound soluble in alkaline medium होता तो हम उसको primary amine बोलते. But because this compound is insoluble in alkaline solution, इसका मतलब ये secondary amine होना चाहिए. अब guys secondary amine में NH group होता है. अब guys यहाँ पे जितने भी options available हैं उसमें option A, C and D में हमारे पास NH group available है. अब गैस इन तीनों ऑप्शंस में से हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर इथाइल ग्रुप होगा. दिस इज बिकॉज
दिस कंपाउंड और दिस अमाइन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय अमोनोलाइसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड। तो डेफिनेटली इसके अंदर इथाइल ग्रुप होना चाहिए। अब गैस इन तीनों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन डी है उसमें हमारे पास इथाइल ग्रुप है विच इज CH2CH3। इसका मतलब गैस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। सो इन समरी, any compound which reacts with Hinsberg's reagent to form a compound which is insoluble in alkaline solution, then this compound is a secondary amine. Also guys, हमें अमोनोलाइसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड से ये बनाना है, तो हमारे को फाइनल आंसर में इथाइल ग्रुप चाहिए था, तो इसीलिए गाइस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द 11th क्वेश्चन ऑफ टुडे। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes students, the 12th question of this chapter is, which of the following compounds can be prepared in good yield by Gabriel-Thalamide synthesis? Guys, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि Gabriel-Thalamide synthesis में आप सिर्फ प्राइमरी अमाइन बना सकते हो। तो guys, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें सिर्फ ऑप्शन ए और डी प्राइमरी अमाइन है। guys, प्राइमरी अमाइन में आपका CH2NH2 ग्रुप या फिर NH2 ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग और अल्काइल ग्रुप होता है। तो गैस यहाँ पे ऑप्शन ए और डी प्राइमरी अमाइन है। लेकिन गैस इस क्वेश्चन का मेन लर्निंग ये है कि आप गैब्रियल-थैलामाइड सिंथेसिस से ऑप्शन डी नहीं बना सकते। दिस इज बिकॉज गैब्रियल-थैलामाइड सिंथेसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइलिक सब्सटीट्यूशन एंड इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। अब गैस जो बेंजीन रिंग होता है या फिर जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफाइलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन इजीली। गाइस, कोई भी बेंजीन रिंग या फिर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड न्यूक्लियोफाइलिक सब्सटीट्यूशन इजीली नहीं करता। इसीलिए गाइस जो ऑप्शन डी है, इट इज नॉट पॉसिबल बाय गैब्रियल-थैलामाइड सिंथेसिस एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। बिकॉज गाइस ऑप्शन ए एक प्राइमरी अमाइन है और इसमें जो न्यूक्लियोफाइलिक सब्सटीट्यूशन होगा वो CH2 ग्रुप पे होगा, वो बेंजीन रिंग पे नहीं होगा, वो CH2 ग्रुप पे होगा, जो कि आराम से पॉसिबल है। So with this we have completed the 12th question of today. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, the 13th question of this chapter is, which of the following is not a correct method of preparation of benzylamine from cyanobenzene? Guys, cyanobenzene is also known as benzonitrile और हमें इसका रिडक्शन करके benzylamine फॉर्म करना है। Let's analyze all the 4 options. In the first option, we have hydrogen gas in the presence of nickel. People, hydrogen gas in the presence of nickel as catalyst is a good reducing agent and therefore it will easily reduce cyanobenzene to benzylamine. Moving ahead to the second option. Guys, in the second option, we are going to first treat cyanobenzene with HCl H2O and then we are going to reduce it with NaBH4. Guys, जब आप HCl H2O ऐड करते हो, इसका मतलब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। और गाइस ये हमने आज के लेक्चर में ही देखा है कि अगर आप CN ग्रुप का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो उसका COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन जाता है। नाउ गाइस, इन द सेकेंड स्टेप व्हेन यू रिड्यूस दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विद NaBH4 तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा CH2OH। इसका मतलब गाइस ये जो ऑप्शन बी है इसमें हमारा फाइनल आंसर होगा बेंजाइल अल्कोहल। Moving ahead to the third option. Guys, in the third option, we have LiAlH4 followed by H3O+. Again, guys, this is a good reducing agent and this will easily reduce the CN group of cyanobenzene to CH2NH2. Moving ahead to the fourth option. Guys, ये भी हमने आज देखा है कि अगर आप cyanobenzene का रिएक्शन करवाते हो with SnCl2 and HCl, तो cyanobenzene में जो CN ग्रुप होता है, it gets converted to CH डबल बॉन्ड NH। इसका मतलब गाइस पार्शियल रिडक्शन होता है। लेकिन गाइस जब आप सेकेंड स्टेप में NaBH4 ऐड करोगे तो ये जो CH डबल बॉन्ड NH है ये फर्दर रिड्यूस होके CH2NH2 ग्रुप बना देगा। इसका मतलब गाइस ये जो ऑप्शन ए, सी और डी है, इन तीनों ऑप्शंस में आपको फाइनल आंसर मिलेगा एज बेंजाइल अमाइन एंड गाइस ये जो ऑप्शन बी है इसमें आपको फाइनल आंसर मिलेगा एज बेंजाइल अल्कोहल। Let's observe all of these reactions in the solution in the next slide. Yes people, तो आप यहाँ solution में observe कर सकते हो that if you treat cyanobenzene with hydrogen gas in the presence of nickel, तो इसका reduction हो जाता है and the compound formed is benzyl amine. इसका मतलब guys ये जो CN group है it gets reduced
to CH2NH2. अब गैस ये सेम रिडक्शन आपको पॉसिबल है इफ यू यूज LiAlH4 फॉलोड बाय H3O+. लेकिन गाइस जब आप साइनोबेंजीन का रिएक्शन करवाते हो विथ SnCl2 एंड HCl तो पार्शियल रिडक्शन होता है और ये जो CN ग्रुप है इट गेट्स कन्वर्टेड टू CH डबल बॉन्ड NH. इसको गाइस हम इम्यूनो ग्रुप बोलते हैं. एंड नाउ गाइस जब आप इम्यूनो ग्रुप का फर्दर रिडक्शन करोगे विथ NaBH4 तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू CH2NH2. यानी कि गाइस ये जो थर्ड प्रोसीजर है इससे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो साइनोबेंजीन टू बेंजाइलमाइन. लेकिन गाइस देयर वाज वन मोर ऑप्शन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. इन दिस ऑप्शन व्हेन यू ट्रीट साइनोबेंजीन विथ HClH2O तो इसका मतलब आप उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हो. गाइस इसको आप नीचे ऑब्जर्व कर सकते हो. जब भी गाइस आप CN ग्रुप का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो उसका COOH ग्रुप बन जाता है. यानी कि गाइस ये जो साइनोबेंजीन है उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा. बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला आता है PHCOOH. नाउ गाइस व्हेन यू रिड्यूस दिस बेंजोइक एसिड विद NaBH4 तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल मिलता है एंड द नेम ऑफ दिस फाइनल कंपाउंड इज बेंजाइल अल्कोहल एंड इट हैज द फॉर्मूला PHCH2OH. So guys, with this we have discussed all the reactions in this question. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, the 14th question of this chapter is as follows. We have a starting compound as alkyl cyanide and now we are going to treat this with diol H followed by hydrolysis. Guys यहाँ पे जो compound दिया है AlHIBu twice, इसको हम diol H बोलते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है diisobutyl aluminium hydride. Now guys, diol H is a partial reducing agent. It is going to selectively reduce CN group to CH double bond NH. Guys, जिस तरह SnCl to HCl CN ग्रुप को CH डबल बॉन्ड NH में रिड्यूस कर देता है वैसे ही गाइस ये जो diol H है ये भी CN ग्रुप को CH डबल बॉन्ड NH इस ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है. एंड नाउ गाइस आफ्टर दिस व्हेन यू ट्रीट दिस विद वाटर तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स विल गो टुवर्ड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स विल गो टुवर्ड्स नाइट्रोजन. दिस विल इवेंचुअली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ RCHO which is an aldehyde. Let's observe all of this in the solution in the next slide. Yes students, आप यहाँ solution में देख सकते हो that the lone pair of electrons of nitrogen will fill the empty orbital of aluminium and after this hydride shift takes place in which H- ions will go towards carbon. This will result in the formation of RCH double bond NH which is also known as an imine. इसके बाद गाइस जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो वाटर में से जो OH ग्रुप है इट विल गो टुवर्ड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन विल गो टुवर्ड्स नाइट्रोजन. इवेंचुअली ऑल हाइड्रोजन विल एंड अप विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम रिमेन्स विद कार्बन फॉर्मिंग RCHO विच इज नोन एज अल्डिहाइड. तो गाइस इन कंक्लूजन हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप RCN का रिएक्शन करवाते हो विद diol H तो उसका कंप्लीट रिडक्शन नहीं होता, उसका पार्शियल रिडक्शन होता है एंड इट फॉर्म्स RCH double bond NH. After this, when you do hydrolysis, so you will eventually obtain aldehyde which is RCHO and also ammonia gas will be released. With this, we have discussed this question now. Let's move ahead to the next question. Yes students, the 15th question of this chapter is a beautiful question on order of basicity. Guys, the question is, the increasing basicity order of the following compounds is. अब गैस ये जो 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें जो ऑप्शन बी है इट इज़ अ 2 डिग्री अमाइन. अब गैस हमें पता है दैट इन एक्वस सॉल्यूशन 2 डिग्री अमाइन इज द मोस्ट बेसिक. गैस इसका रीज़न बहुत सिंपल है. हमारा जो 3 डिग्री अमाइन होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं फॉर डोनेशन. इसीलिए गैस 3 डिग्री अमाइन इज नॉट द मोस्ट बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन, इट इज़ एक्चुअली 2 डिग्री अमाइन. इसका मतलब स्टूडेंट्स जो ऑप्शन बी है इट विल बी मोस्ट बेसिक. इसके बाद गाइस ऑप्शन ए जो है वो हमारा सेकेंड नंबर पे आएगा इन ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बिकॉज वो 1 डिग्री अमाइन है. एंड गाइस उसके बाद आएगा ऑप्शन सी विच इज 3 डिग्री अमाइन. सो यहाँ पे अभी तक करेक्ट आंसर होगा BAC. एंड गाइस फाइनली लास्ट नंबर पे आएगा ऑप्शन डी. गाइस द रीजन दैट ऑप्शन डी इज द लीस्ट बेसिक
इज बिकॉज ऑप्शन डी में नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद द पीएच ग्रुप. गाइस पीएच मतलब बेंजीन रिंग होता है, और यहां पे नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेंगे, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी इजीली अवेलेबल नहीं होंगे फॉर डोनेशन. एंड इसी वजह से ऑप्शन डी विल बी द लीस्ट बेसिक. सो इन समरी गाइस, इन एक्वस सॉल्यूशन 2 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, और यहां पे द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी ए सी डी. और गाइस डी लास्ट नंबर पे इसीलिए आता है बिकॉज डी ऑप्शन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन है दे आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग, and therefore they are not easily available for donation. With this, we have completed the discussion of this question. Now let's move ahead to the next slide. Yes, students, the 16th question of this chapter is, we have aniline which is going to be treated with K2Cr2O7. Guys, K2Cr2O7 is a strong oxidizing agent. तो guys, ये जो K2Cr2O7 है ये हमारे aniline को ऑक्सीडाइज कर देगा, and this will result in the formation of benzoquinone and the removal of NH4 plus ions. Guys, ये जो K2Cr2O7 है इसके अंदर nascent ऑक्सीजन होता है, and therefore this is a strong oxidizing agent. And guys, ये strong oxidizing agent होने की वजह से ये aniline को ऑक्सीडाइज करके 1,4 benzoquinone बनाता है, जिसका स्ट्रक्चर आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, and also NH4 plus ions are removed. With this, we have completed this question, which was a very simple question of oxidation of aniline. ये आपको मेमोराइज करना है that aniline का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो with K2Cr2O7 तो आपको benzoquinone मिलता है. Now let's move ahead to the next question. Yes, students, the 17th question of this chapter is as follows. Guys, यहाँ पे हमारे पास starting compound is benzene and इसको ट्रीट किया है with concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. Guys, जब भी आप concentrated HNO3 and H2SO4 यूज करते हो तो it results in the formation of an electrophile NO2+. Now guys, this electrophile will go and attach itself to the benzene ring and this will result in the formation of nitrobenzene. Now guys, nitrobenzene में जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है. Therefore, it becomes meta-directing towards the next electrophile which will come in the second part of this reaction. Guys, यहाँ पे second part में we are treating this compound A with chlorine and anhydrous AlCl3. Guys, this will give rise to an electrophile Cl plus and AlCl4 minus will be formed. अब guys, ये जो Cl plus electrophile है it will go to the meta position of nitrobenzene because nitrobenzene is meta directing. इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप में हम इस कंपाउंड बी को ट्रीट करेंगे विथ आयन एंड HCl. पीपल, एनी मेटल इन एसिड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पे जो आयन HCl है वो NO2 ग्रुप को रिड्यूस कर देगा इनटू NH2 ग्रुप. इसका मतलब स्टूडेंट्स जो ऑप्शन ए है वही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. लेट्स लुक एट ऑल ऑफ दिस रिएक्शंस इन डिटेल इन द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, यहां पे आप स्टेप नंबर 1 ऑब्जर्व कर सकते हो. बेंजीन हैज बीन ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. Guys, these two reagents will give rise to an electrophile NO2+, and we know that benzene loves to undergo electrophilic aromatic substitution. तो guys, यहाँ पे जो NO2+ ग्रुप है वो बेंजीन को अटैच हो जाएगा and this will result in the formation of nitrobenzene. अब गैस नाइट्रोबेंजीन में जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है एंड देयरफॉर इट बिकम्स मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल. अब गैस यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट ऑफ द रिएक्शन है उसमें हम नाइट्रोबेंजीन को ट्रीट कर रहे हैं विथ क्लोरीन एंड एनहाइड्रस AlCl3. गैस ये जो क्लोरीन एंड AlCl3 है दे विल फॉर्म AlCl4 माइनस एंड Cl+. अब गैस ये जो Cl+ है इट इज अगेन एन इलेक्ट्रोफाइल and now this electrophile will go to the meta position of nitrobenzene. अब गैस एक बार आपको ये कंपाउंड B मिल गया, अब आप जब इसको ट्रीट करोगे विथ आयन एंड HCl तो आयन एंड HCl इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. इट इज गोइंग टू रिड्यूस द NO2 ग्रुप इनटू NH2 ग्रुप. सो यहाँ पे आप ऑप्शन सी या फिर कंपाउंड सी देख सकते हो जिसमें हमारे पास एक NH2 ग्रुप है एंड उसके मेटा पोजिशन पे वी हैव क्लोरीन. With this, we have completed this question. Now let's move ahead to the next question.
Yes, students. The 18th question of this chapter is as follows. Guys, the starting compound is aniline and we are going to treat this with acetic anhydride. Guys, जब आप aniline का रिएक्शन करते हो with acetic anhydride तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं they go and attack carbonyl carbon of acetic anhydride. This results in the formation of NH double bond O CH3 group which will be attached to benzene. एक बार गाइस कंपाउंड A बन गया और आप अब जब इसको ट्रीट करोगे विद ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड then it will result in the formation of electrophilic aromatic substitution of bromine at the para position of the compound A. गाइस इसको हम डिटेल में देख लेते हैं इन द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. ये स्टूडेंट्स, आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो दैट व्हेन एनालिन इज रिएक्टेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड तो एनालिन में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे गो एंड अटैक कार्बोनिल कार्बन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड. दिस विल इवेंचुअली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ NHC double bond O CH3 group which is attached to benzene and this compound is known as acetanilide. अब गाइस ये जो कंपाउंड बना है इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड. दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल Br+ and this electrophile will go to the para position of acetanilide. गाइस इसका रीजन बहुत सिंपल है. नाइट्रोजन ग्रुप के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड देयरफॉर इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग और यहां पे गाइस पैरा प्रोडक्ट प्रेफर होता है बिकॉज इट हैज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस. इसी के साथ गाइस ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस स्टूडेंट्स, द 19th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज एज फॉलोज. द टोटल नंबर ऑफ reagents from which you can convert nitrobenzene into aniline is. सो गाइस यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं उसमें आपको ये चेक करना है कि कौन से अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करके एनालिन बना दे. तो गाइस पहले तो आपको एक जनरल रूल बताना चाहूँगा. एनी मेटल इन एसिड, वाटर और अल्कोहल इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहाँ पे गाइस जो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज टिन एंड HCl. तो दिस इज डेफिनेटली अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. सिमिलरली आयरन एंड HCl एंड जिंक एंड HCl आर ऑल्सो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. इसके अलावा गाइस हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल इज ऑल्सो एन अमेजिंग रिएजेंट एंड इसीलिए यहाँ पे जो 5th और 6th ऑप्शन दिया है वो भी अलाउड होगा. गाइस यहाँ पे द ओनली ऑप्शन विच इज नॉट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट इज टिन इन NH4OH. तो गाइस अगर आप नाइट्रोबेंजीन के अंदर टिन एंड NH4OH ऐड करोगे तो आपको एनालिन नहीं मिलेगा. सो यहाँ पे गाइस द करेक्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग नाइट्रोबेंजीन टू एनालिन will be by using tin HCl or iron HCl or zinc HCl or hydrogen gas in the presence of platinum, palladium or nickel. With this we have completed this question. Now let's move ahead to question number 20. Yes students, the 20th question of today is as follows. Which of the following reactions does not occur? Guys यहाँ पे सारे options को analyze कर लेते हैं. In the first option, we have aniline which is going to be treated with acetic anhydride. तो guys जब आप aniline का रिएक्शन करवाते हो with acetic anhydride तो जो aniline में नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं they go and attack carbonyl carbon of acetic anhydride. This results in the formation of NHC double bond O CH3 group which is attached to benzene और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं acetanilide. तो इसका मतलब गाइस जो ऑप्शन ए है वो डेफिनेटली पॉसिबल है. लेट्स लुक एट ऑप्शन बी. गाइस ऑप्शन बी में हम एनालिन का रिएक्शन कर रहे हैं विद H2SO4. पीपल, दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन एट पैरा पोजिशन एंड गाइस जो इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजिशन पे अटैच होता है वो होता है SO3. बट आफ्टरवर्ड्स इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू SO3- एंड देयरफॉर यहाँ पे आपको पैरा पोजिशन पे दिख रहा होगा SO3H. This reaction is known as sulfonation and guys ये भी definitely possible है. Now let's look at option C. Guys option C में हम aniline का reaction कर रहे हैं with anhydrous AlCl3 and CH3Cl. Guys इसको हम Friedel-Crafts reaction बोलते हैं. People usually Friedel-Crafts reaction में AlCl3 और CH3Cl आपस में react करके AlCl4- and CH3+ बनाते हैं.
तो इसका मतलब यहाँ पे CH3 प्लस पैरा पोजिशन पे अटैच होना चाहिए। तो इसका मतलब जो रिएक्शन सी है वो भी फिजिबल लग रहा है, लेकिन गाइस रिएक्शन सी जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज एनालिन इज अ वेरी गुड बेस एंड AlCl3 इज अ लुईस एसिड। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। एनालिन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। गाइस इसका रीजन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। गाइस एनालिन में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ AlCl3। गाइस AlCl3 में एल्यूमिनियम के अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल होता है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है फ्रॉम नाइट्रोजन ऑफ एनालिन। इस वजह से आपका जो AlCl3 है वो नाइट्रोजन के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है, एंड देयरफॉर इट इज नॉट एबल टू फॉर्म CH3 प्लस, एंड देयरफॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल विद एनालिन। यानी कि गैस यहाँ पे जो रिएक्शन सी है वो पॉसिबल नहीं है। नाउ लेट्स ऑल्सो ऑब्जर्व द फोर्थ रिएक्शन। गैस फोर्थ रिएक्शन में एनालिन इज गोइंग टू बी ट्रीटेड विथ HNO3H2SO4। तो गैस ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जब भी आप HNO3H2SO4 यूज करते हो तो एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2 प्लस, एंड दिस NO2 प्लस इज विल गो टू द पैरा पोजिशन ऑफ एनालिन। दिस इज बिकॉज एनालिन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, एंड गाइस पैरा पोजिशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। तो इसका मतलब गाइस यहाँ पे जो ऑप्शन A, B और D दिया है ये तीनों ऑप्शन पॉसिबल हैं, लेकिन गाइस ऑप्शन C पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एनालिन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एंड दिस इज बिकॉज एनालिन में नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स बॉन्ड विथ AlCl3। With this, we have completed this question. Now let's move ahead to the next question. Yes, people, the 21st question of today is extremely interesting and important. Guys, in this question, aniline has been treated with HNO3 and H2SO4. So guys, हमें पता है जब HNO3 और H2SO4 combine होते हैं, they result in the formation of an electrophile NO2+. अब guys, aniline is ortho and para directing. दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड देयरफॉर दे कम इनसाइड द बेंजीन रिंग, मेकिंग इट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है NO2 प्लस, इट शुड गो टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। इसमें गैस जो पैरा पोजिशन होता है वो यूजुअली मेजर प्रोडक्ट होता है, बिकॉज वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। तो यहाँ पे गैस पैरा प्रोडक्ट शुड बी द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन गैस हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि जो सेकेंड मेजर प्रोडक्ट होगा वो ऑर्थो प्रोडक्ट होगा, बिकॉज एनालिन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन गैस यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन आ जाता है। गैस बिकॉज एनालिन इज अ गुड बेस, वो HNO3 और H2SO4 में से H+ आयंस को अपने ऊपर ले लेता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एनालिनियम आयन। अब गैस ये जो एनालिनियम आयन है इट बिकम्स मेटा डायरेक्टिंग। दिस इज बिकॉज एनालिनियम आयन में आपके पास बेंजीन रिंग होता है एंड इट विल बी अटैच्ड टू NH3+, एंड देयरफॉर इस केस में इलेक्ट्रॉन्स गो आउट फ्रॉम द बेंजीन रिंग, मेकिंग एनालिनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग। तो इसका मतलब गाइस आपका जो सेकेंड मेजर प्रोडक्ट होगा वो ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं होगा, यहाँ पे सेकेंड मेजर प्रोडक्ट होता है मेटा प्रोडक्ट। एंड गाइस यहाँ पे जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो आपका सबसे माइनर प्रोडक्ट होगा। इनफैक्ट गाइस यहाँ पे जो तीनों प्रोडक्ट्स का परसेंटेज है वो भी यहाँ पे NCERT में दिया हुआ है और काफ़ी बच्चे उसको मेमोराइज करते हैं। लेट मी टेल यू द परसेंटेज। गाइस यहाँ पे जो पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, इट विल बी 51%। फिर गाइस मेटा प्रोडक्ट विल बी द सेकेंड मेजर प्रोडक्ट विच विल बी 47%, एंड गाइस ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी द माइनर प्रोडक्ट विच विल बी जस्ट 2%। तो गाइस यहाँ पे जो मेटा प्रोडक्ट है वो सेकेंड मेजर प्रोडक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एनालिनियम आयन। इसी के साथ गाइस ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस पीपल, इन द 22nd क्वेश्चन they have asked us about carbylamine test. Guys, the question is, carbylamine test is used to detect the presence of primary amino group in an organic compound. Which of the following compound is formed when this test is performed with aniline? तो गैस एनालिन का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन अटैच टू NH2। गैस जब आप एनालिन का रिएक्शन करवाओगे विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH तो इसको हम कार्बाइलामाइन टेस्ट बोलते हैं। एंड गैस ऐसे केस में आपका जो NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू NC,
जिसको हम आइसोनाइट्राइल बोलते हैं. So therefore the correct answer for this question will be option C, benzene, and it will be attached to NC. इसी के साथ guys ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. Let's move ahead to question number 23. Yes students, so we have covered all the important reactions in this chapter. There is one final reaction remaining and that will be covered in this question. This will be the last question of this video. Guys, the question is, which of the following reactions will not give para-amino-azobenzene? Guys, let's analyze all the three variations. The first variation is we have nitrobenzene and we are going to treat this nitrobenzene with tin and HCl in the first step, followed by HNO2 in the second step, and finally we are going to treat this with aniline in the third step. तो guys, जब आप nitrobenzene में tin HCl ऐड करोगे तो नाइट्रोबेंजीन में जो नाइट्रो ग्रुप है उसका रिडक्शन हो जाएगा और वो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आफ्टर स्टेप नंबर 1 वी विल हैव एनालिन. उसके बाद गाइस एनालिन बनने के बाद में जब आप उसको रिएक्ट करवाते हो विथ HNO2, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट. गाइस इसका फॉर्मूला होता है बेंजीन N2+Cl-. एंड नाउ गाइस आफ्टर दिस बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड, व्हेन यू ट्रीट दिस बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट विथ एनालिन, यहां पे इलेक्ट्रोफाइलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है जिसमें बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट विल अटैक द पैरा पोजिशन ऑफ एनालिन एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एजोडाई विच इज येलो इन कलर. तो इसका मतलब गाइस जो वेरिएशन ए है उसमें एक्चुअली पैरा एमिनो एजोबेंजीन फॉर्म होता है. नाउ लेट्स लुक एट वेरिएशन बी. गाइस वेरिएशन बी में वी आर रिएक्टिंग नाइट्रोबेंजीन विथ NaBH4 followed by NaOH and then followed by aniline. Guys, लेकिन ये जो वेरिएशन बी है इसमें जब आप नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन करते हो विथ NaBH4 तो देयर इज नो रिएक्शन. पीपल, NaBH4 इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट इज अनेबल टू रिड्यूस एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप इनटू NH2 ग्रुप. तो इसका मतलब गाइस ये जो रिएक्शन बी है इसमें कुछ भी नहीं होगा इन ऑल द थ्री स्टेप्स. नाउ गाइस द वेरिएशन सी. In variation C, we have aniline and we are going to treat this with HNO2 in the first step. तो guys, obviously जब आप aniline को HNO2 के साथ treat करते हो तो benzene diazonium salt बनेगा. And now guys, जब आप इस benzene diazonium salt का reaction करवाओगे with another aniline in the second step, तो आपको azodie मिलेगा जिसमें benzene diazonium salt acts as an electrophile and it attacks the para position of aniline. This results in the formation of azodie which is yellow in color. तो इसका मतलब गाइस यहाँ पे जो वेरिएशन ए एंड सी है उसमें हमारे को पैरा एमिनो एजोबेंजीन मिलेगा एंड गाइस जो वेरिएशन बी है उसमें देयर विल बी नो रिएक्शन. लेट्स ऑब्जर्व दिस इन द सॉल्यूशन. तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे वेरिएशन बी पहले दिखाया हुआ है. जब आप नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन करवाने की कोशिश करोगे विथ NaBH4 तो देयर विल बी नो रिएक्शन बिकॉज NaBH4 इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. उसके बाद गाइस जब नाइट्रोबेंजीन को आप फर्दर रिएक्ट करने की कोशिश करोगे विथ NaOH, उस केस में भी देयर विल बी नो रिएक्शन. सो गाइस इन वेरिएशन बी देयर इज नो रिएक्शन इन एनी स्टेप. उसके बाद गाइस अगर हम यहां पे वेरिएशन ए को ऑब्जर्व करें तो मैंने आपको ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर आप tin HCl यूज करते हो तो NO2 ग्रुप रिड्यूस होके NH2 ग्रुप बन जाएगा. इसका मतलब आपको स्टेप नंबर 1 के बाद एनालिन मिल जाएगा. गाइस इसके बाद जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे विथ HNO2 तो आपको डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा विच इज बेंजीन N2+. एंड नाउ गाइस दिस डायजोनियम सॉल्ट एक्चुअली एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल और वो एनालिन के पैरा पोजिशन पे अटैक करता है. दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पैरा एमिनो एजोबेंजीन जिसका स्ट्रक्चर आप नीचे देख सकते हो एंड दिस इज अ डाई ऑफ येलो कलर. सिमिलरली गाइस जो वेरिएशन सी है उसमें भी सेम कंसेप्ट है. व्हेन यू ट्रीट एनालिन with HNO2, this will result in the formation of diazonium salt. और जब आप diazonium salt को further react करोगे with another aniline तो फिर electrophilic aromatic substitution होगा at para position of aniline and this results in the formation of para amino azobenzene. With this we have completed this question. I again had a lot of fun in teaching you all the questions of this chapter. Till then, stay happy, stay positive, and I will see you in the next video.